Hello, this is Shubhan Sharma welcoming you all to JKC English Bulletin. So let's start today's bulletin with the headlines. Lieutenant Governor Manoj Sinha launches Green Jammu Kashmir Drive, said administration has set up a target for current year to plant 1.5 crore saplings. Meteorological Department issues advisory in view of continuous rains, instructed people to stay indoors. Jammu-Srinagar Leh highway closed after landslide, Amarnath Yatra suspended. PDP's Foundation Day being celebrated in UT on the completion of 23 years, programs being organized from place to place. And meeting organized by BJP in Budgam regarding Har Ghar Tiranga program, Dr. Lakshna Andrabi including many high officials remained present. Now news in detail. Lieutenant Governor Manoj Sinha launched Green Jammu Kashmir Drive today, during which he planted saplings at AIIMS Jammu. During this, he said that the protection and conservation of natural resources and striking a perfect balance between the nature and development is our topmost priority. He added that the administration has set up a target for the current year to plant 1.5 crore saplings, which will prove to be a boon for the Union Territory of Jammu Kashmir. Rains continued in Jammu Kashmir on Thursday in the city of Jammu. Since morning, rains have led to waterlogging on various roads. At the same time, Jammu-Srinagar National Highway has been closed due to landslide in the areas of Ramban. Meanwhile, Chenab River is flowing above the danger mark in Aknoor, and the administration has advised the people not to go near the water bodies during the period. DC Jammu has issued an alert in view of rising water levels of Chenab, instructing all the people to stay away from the river. At the same time, people living in residential areas around Chenab have also been alerted. The process of rain continues across Jammu Kashmir. Problems like waterlogging, landslides are being seen from place to place. Meanwhile, Meteorological Department Srinagar has informed that the weather will remain like this till 30th of July, and after 30th of July afternoon the weather will change.
He appealed to the people not to believe in rumors and contact meteorological department for correct information. On this occasion, Shivanaji Yatra was also Shivanaji Yatris were also appealed to go on yatra as per the advisory. आफ्टरनून 27 से लेकर 30 मॉर्निंग तक किया हुआ है। 30 मॉर्निंग के बाद जो इंटेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। अभी वैली कश्मीर वैली में इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन फिर भी वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने के चांसेस हैं। देखो, अमरनाथ यात्रा चल रही है, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। यात्रा स्मूथली चलनी चाहिए। कल का जो एक हमने वाक़ा देखा है, रूमर आ रहा था कि जहाँ फ्लैश फ्लड हुआ है, मोर ओवर उसका क्लाउड बस्टिंग हुई है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर किया है कि वहाँ कल कोई फ्लैश फ्लड और क्लाउड बस्ट नहीं हुआ है। इसलिए रूमर्स पे मत जाएं, लेकिन एडवाइजरी को मद्देनजर रखते हुए उनका फॉलो करें। जी 30 महीने तक क्लाउडी प्लस स्पेल टू स्पेल रेनफॉल हो जाएगा, लेकिन 30 मारने के बाद जो है मौसम ठीक हो जाएगा। Due to continuous rains, the district administration Riyasi has also issued advisory for the people of Riyasi. The water level of Chenab River is increasing continuously, due to which the people have been appealed not to go near the river. Along with this, the people are getting upset due to non-availability of basic facilities due to rain, but at the same time, district administration is engaged for providing every possible assistance to the locals. On this, Deputy Commissioner Babila Rakwal is keeping an eye on this. Let's have a look. आज से जो रेन चल रही है उसकी वजह से हमारा जो पीछे चेनाब में जो पानी आता है, सलाल डैम जो लेता है सारा का सारा जो पानी का जो बहाव लेता है, तो उस तहत सुबह से मॉर्निंग से जो अभी भी जो बारिश हो रही है, जो NHPC से लेटेस्ट इनपुट जो आई है उसके तहत उन्होंने लगभग 10 गेट्स खोले हैं ताकि फ्लश आउट हो सके पानी इमीडिएटली और डिसिल्टिंग हो सके। और हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोगों ने एक 144 सेक्शन भी लगा दिया है और लोगों को एडवाइजरी इशू कर दी है कि वो चेनाब के जो एरियाज हैं, जो नियर बाय एरियाज हैं या जो रिवर्स और रिवलेट्स जो चेनाब की हैं उसके आसपास ना वेंचर करें, ना वहाँ अपने मवेशी लेके जाएं, ना वहाँ पे नहाने का या कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करने की कोशिश करें, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस लेवल पर जा चुका हुआ है। जम्मू से भी इनपुट्स आ रही हैं कि अखनूर में जाकर भी जो चेनाब का जो एक प्रभाव है वो काफ़ी तीव्र गति पे जा चुका है, ऑलमोस्ट रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ आम पब्लिक को कि वो ना वेंचर आउट करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और इसके अलावा हमारे जो रोड्स हैं, रोड्स भी काफ़ी इफेक्ट हुए हैं रेन्स की वजह से, तो वो उस पर लेकिन रेस्टोरेशन का काम तेज़ी से चल रहा है। हमारे सारे JCBs वगैरह, चाहे वो ग्रेफ की साइड के हों, ग्रेफ साइड से PWD, PMGSY, ये सारे के सारे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं ब्रेकेज जो होती है उसको रिस्टोर किया जा सके। नेशनल हाईवे जो हमारा 144 है, जो दुमेल कटरा से दुमेल पुनी तक जाता है और रजौरी से कनेक्ट करता है हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी को, वो फिलहाल के लिए ठीक है। उधर कोई ऐसा कोई रुकावट नहीं आई है, हालांकि ट्रैफिक का मूवमेंट थोड़ा सा स्लो है। और बाकी जो रोड्स हैं PMGSY की चाहे PWD की, वो सब उस पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। PHE की जो हमारी कुछ वाटर स्कीम्स हैं, स्पेशली ग्रेविटी वाली, वो कुछ इफेक्ट हुई हैं, उस पर भी जायज़ा लिया जा रहा है और डैमेज कंट्रोल के लिए डिटेल्स बनाने के लिए हिदायत दे दी गई है इंजीनियरिंग विंग को कि वो चेक कर ले क्या क्या डैमेज हुआ है, ताकि उसको इमीडिएटली रेस्टोरेशन करने का काम वहाँ पर भी शुरू हो सके। फिलहाल के लिए जो मेरी नॉलेज में है, यात्रा ऐसा कोई इतनी मेजर वे में इफेक्ट नहीं हुई है, बट हाँ, जो जैसे आप बोलते हो कि शूटिंग स्टोन्स वहाँ पर भी देखे जाते हैं कई कई जगह, तो यात्रा को थोड़ा सा देखकर ही आगे जाने की नसीहत दी जा रही है। Jammu Srinagar Leh highway have been closed for the vehicular movement. Landslides occurred at many various places on the highway due to heavy rains since night. At the same time, ongoing Amarnath Yatra has also been suspended due to the weather conditions. The batch of pilgrims leaving from Jammu has also been stopped till the weather clears. The Meteorological Department has also issued an alert instructing the people not to approach the hilly areas. Addressing party workers on occasion of 23rd Foundation Day of People's Democratic Party, that is PDP, Mehbooba Mufti slammed the central government for forcing school students and shopkeepers and everyone in India for Har Ghar Tricolor campaign. She said that if you have courage, then hoist the flag in 1000 kilometers square area of India occupied China.
She also told that Prime Minister Narendra Modi that if you want, you can find a solution to the issue of Jammu Kashmir. You will be remembered for this in history. No one will be remembered for destroying temples and mosques. You have imprisoned thousands of youth in various jails of the country on the basis of suspicion. She requested PM Modi to release these boys with amnesty. Mehbooba Mufti demanded that Sharda Peeth route should be opened like Kartarpur corridor for Kashmiri Pandits. चाहती हूँ, आप बार बार कहते हो कि मैं इस मुल्क को विश्व गुरु बनाऊंगा, यानी दुनिया गुरु बनाऊंगा। क्या बना? वो बनाऊं दुनिया गुरु। अरे दुनिया के गुरु तो बाद में बनी, पहले अपने घर को संभालिए। विश्व गुरु बनेगा हिंदुस्तान, जरूर बनेगा, क्योंकि इसमें वो ताकत है, इसमें वो जमहूरियत है, इसमें वो सेकुलरिज्म है जिसको आज आप तार तार कर रहे हो। मगर अगर आपको विश्व गुरु बनना है, उसका रास्ता जम्मू कश्मीर से गुजरता है। जब तक आप मसला कश्मीर हल नहीं करेंगे, आपके टांगों में बेड़ियां रहेंगी जम्मू कश्मीर की। क्वाड से नहीं बल्कि सार्क से मिले, जहां पर आपके अपने हमसाए, मैं पाकिस्तान का नाम लूंगी तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आता है ना? बेशक बेशक। श्रीलंका, भूटान, नेपाल और जितनी भी कंट्रीज हैं जो सार्क में हैं, आपने उनके साथ क्या किया? जब आप अपने हमसायों के गुरु नहीं बनेंगे तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? मगर इस बार इन्होंने यात्रा को भी वबाली जान बनाया है। अगर किसी की डिलीवरी, कोई बीमार, वो अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत के मुंह में चला जाता है। ऐसे इन्होंने स्ट्रिक्टनेस, इतनी नाकाबंदी, ऐसे लोगों को रोका जाता है। People's Democratic Party celebrated 23rd party raising day at Baramulla Dak Bungalow as well. Senior leaders Abdul Rahman Viri, Senior Chief President Sohail Bukhari, Chief Spokesperson Peer Jalaluddin Shah, District President Baramulla Khurshid Iqbal Shah, State Secretary, District Presidents and other people were also present during this. फैसला किया कि ये फाउंडेशन डे हम साउथ में अनंतनाग में बुला लेंगे, श्रीनगर में उधर शेरी कश्मीर पार्क में, और बारामूला में बारामूला डाक बंगले होना है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों का, जो हमारी लीडरशिप है यहाँ, साथी सोहेल साहब हैं, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान है, जोन प्रेसिडेंट साहिबान है, सेक्रेटरी साहिबान है, उनका शुक्रगुजार है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और अच्छा खासा है। किस तरह सरखेज ज़मीन है, यह कशीर पट वन बन लीडरन यह वन पन्न कूल तथी लगन, ये ज़मीन जरखेज, ये जरखेज ज़मीन है। मुझे पता है मैं किस तरह ज़मीन से बात कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन इस बार पार्टी लीडरशिप ने डिसाइड किया कि कश्मीर में 3 जगहों पे ये फंक्शन होगा। साउथ में अनंतनाग में, सेंट्रल कश्मीर में श्रीनगर में, और नॉर्थ कश्मीर कुपवारा बारामूला के लिए बारामूला हेडक्वार्टर्स में। और आपने खुद देखा कि हज़ारों की तादाद में बारामूला और कुपवारा से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो रुफ़का हैं, जो लीडर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ आए थे। और आज के दिन जिस मकसद के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने ये पार्टी बनाई थी, उस एजेंडे को रिएटिरेट किया कि जम्मू कश्मीर के मसाइल, यहाँ के आवाम के जो इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो एक प्रैक्टिकल रोड मैप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दिया है, उसके बगैर और कोई चारा नहीं है। उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए जम्मू कश्मीर के आवाम को इन मुसीबतों और मुश्किलात से बाहर निकाला जा सकता है। साथ ही इस बड़ी तादाद ने ये भी रेटिरेट किया है कि वो कदम ब कदम, हर्फ ब हर्फ, हमारी जो कायद मोहतरमा है महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनकी जो जद्दोजहद है जम्मू कश्मीर के आवाम के इज़्ज़त नफ्स के लिए, उनके हुकूक के लिए, उसमें उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। The employees of PM package located at Sheikhpura Pandit Colony, Budgam expressed happiness over the transfer of some of their colleagues to Jammu. Speaking on the occasion, he said that some of his colleagues have been shifted to Jammu by the government, after which he hopes the transfer orders will come from them as well as he welcomes the decision of the government. Let us tell you that these people have been protesting continuously since death of Rahul Bhatt and are continuously demanding that their situation becomes favorable in the valley. They should be shifted to Jammu.
We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want demand one solution. Relocation. 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 डिमांड तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में कुछ कागज़ है, कुछ जो कि एक रिलोकेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हम आज बहुत खुश हैं सरकार से कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि कुछ लोगों के लिए, बेशक कुछ लोग हुए हैं कल रीलोकेट, उनकी जो ट्रांसफ़र्स हुई है जम्मू, तो ये एक पैसेज बनता है हम बाकी सब लोगों के लिए कि हमें भी एक रिलोकेशन का एक ज़रिया मिल जाएगा। और रही बात हमारे बॉन्ड की, जो हम बोल रहे थे कि हम बॉन्ड के तहत बंधे हुए हैं, मगर इस ऑर्डर के ज़रिए ये बॉन्ड अब कहीं वैलिड नहीं है। तो अगर इनके लिए भी ये बॉन्ड था तो इन लोगों के लिए भी ये बॉन्ड था, तो हम अब बॉन्ड के अंडर कोई मतलब हम उसके अंडर नहीं अब बिलोंग करते हैं। रिलोकेशन के लिए उन्होंने कल ये लिस्ट निकाली है जो रिलोकेशन हुए जम्मू के लिए, कोई तो इन्होंने स्टार्ट किया है प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए हम के लिए धन्यवाद है तहे दिल से। तो शायद इन दिनों आगे दिनों में भी हमारा रिलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम इनके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन का। कितनी छोटी सी चिंगारी तो कहीं जली, एटलीस्ट हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे। अभी तो साली खाली बारिश ही गिर रही थी, एक चिंगारी जलने से वैसे हमें अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है। क्योंकि हम सरकार से खुश हैं, आखिरकार उन्होंने रिलोकेशन पे अमल करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हमारे पीएम पैकेज के 5 जूनियर इंजीनियर्स जो इंचार्ज बने हैं फ़िलहाल ही, उनको जम्मू के लिए रिलोकेट कर दिया गया है। ये 22 तारीख का सरकार का ऑर्डर है। ये 5 एम्प्लॉयज़ जम्मू रिलोकेट हो चुके हैं। अब इनका जो वर्किंग है जम्मू में होगा। इसका मतलब रिलोकेशन पे सरकार काफ़ी सीरियस है, वो संजीदा है। रिलोकेशन के लिए वो अपना बिल्कुल जो पॉजिटिव नोट है उन्होंने शुरू कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से हमारे ये 5 भाई जिनको एज इंचार्ज जेईज उनको यहाँ से रिलोकेट करके जम्मू में काम करने का मौका मिला है, कुछ देर के अंदर हम सभी जितने भी यहाँ पर माइनॉरिटी पीएम पैकेज एम्प्लॉयमेंट पैकेज के मेंबर्स हैं, उनको धीरे धीरे इसी तरह से रिलोकेशन का रास्ता दिखा के हमारी जो जिंदगी पर बन आई है उसके लिए सरकार कारगर कदम उठाएगी। इसका हम तहे दिल से सरकार से शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे 5 निकले हैं वैसे हम सब यहाँ से रिलोकेट होके अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं। A meeting was organized by BJP in BJP office Bargaon regarding the program Har Ghar Tiranga. During this Waqf board, President Dr. Darakshnan Drabi and UT spokesperson of Jammu Kashmir BJP were present as chief guests. On the other hand, it was jointly presided over by the in-charge Jammu Kashmir BJP Minority Morcha, Ali Mohammed Mir and other office bearers. देखिए, आप सब जानते हैं कि ये हमारी आज़ादी का 75वां साल है, और जब 75वां साल है तो ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारत देश में। वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश रही कि हमारे सरकार की ख्वाहिश रही कि हर घर तिरंगा भी लहराया जाए, और सरकार इस प्रोग्राम को बड़े उत्साह से पूरे देश भर में चला रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जम्मू कश्मीर में भी ये अभियान चला रहे हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तिरंगा लहराते हैं, हमारे यहाँ पे किसी भी स्टेट में, किसी भी यूटी में गवर्नर या चीफ मिनिस्टर लहराता है, उस दिन को हम बड़े उत्साह के साथ, उस कड़ी को हम बड़े उत्साह के साथ देखते थे। लेकिन हमारी सरकार और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हर एक देशवासी को ये मौका दिया कि वो अपने घर में, अपने सामने, अपने हाथ से तिरंगे को लहरा सकता है और उस प्रोटोकॉल को महसूस कर सकता है जो प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर साहब महसूस करते हैं, हमारे बड़े लोग करते थे। 25th ईयर जो हमारे इंडिपेंडेंस, ये हर एक नागरिक उसी उत्साह के साथ मनाएगा जो लाल किले में मनाया जा रहा है। As part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrating 75 years of India's independence, district administration under the aegis of Union Ministry of Power organized a mega event at Government Degree College Uri to celebrate the Ujjwal Bharat Ujjwal Bhavishya Power at the rate
2047 program which aimed to showcase the achievements recorded especially in power sector. Deputy Commissioner Baramulla Dr. Sahrish Asgar presided over the program as chief guest. Let us tell you that during this she also said that benefits of electricity and unprecedented growth achieved by the power sector over the past few years is commendable. ऑनलाइन सर्विसेज हो गई हैं कि आप घर बैठे बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको कहीं भी ऑफिसेज में जाने की जरूरत नहीं है। महकमा बिजली की तरफ से आज मैंने दूसरी बार पूरी का विजिट किया। हमें पावर को बचाना है हर जगह। किया था इसका मेन टॉपिक था उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य। ये हम एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन कर रहे हैं 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हमने अपना जो गोल है हर घर बिजली का वो अचीव कर लिया है। इसी को सेलिब्रेट किया जा रहा था आज होली में भी, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें बहुत सारे एरिया से लोग जिन्होंने सौभाग्य किए और इस तरह जो और बिजली की स्कीम्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर स्किट्स हुई, नुक्कड़ नाटक हुए। लोकल बच्चों ने जो है इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अपने स्किट्स के ज़रिए अपने गज़ल्स के ज़रिए ये पैगाम लोगों तक पहुँचाया कि बिजली को बचाना है। और यही नारा यहाँ पर सब लोगों ने दिया। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य की एक बहुत अच्छी कल्मिनेशन हमने होली में की। इससे पहले भी बारामूला में हमने ये प्रोग्राम किया था इवन बाय द टूरिस्ट, क्योंकि इससे एक तो हमारी जो अनशेड्यूल्ड कार्ड्स थे डिफरेंट रिसीविंग स्टेशंस बने उससे कम हो गए हैं। ट्रांसमिशन में डिस्ट्रीब्यूशन में जो इश्यूज थे वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और इसी की सेलिब्रेशन की उज्ज्वल भारत उज्ज्वल। DIG-SSB Rajesh Kumar started campaigning for Har Ghar Jhanda Har Ghar Tiranga program by taking a pledge to hoist the tricolor at every residence of subdivision Gandu and encouraged others to do the same. This campaign is being conducted under the Great Visionary Program of Azadi Ka Amrit Mahotsav, which will end on August 15. On the first day of this campaign, SSB DIG also organized a program at Government High Secondary School Balesa with an aim to encourage सरपंचेस, पंचेस, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर द स्पिरिट ऑफ नेशनल यूनिटी एंड पेट्रियोटिज्म। गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है हर घर तिरंगा, उसको सक्सेसफुली वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो इस कारण से जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बताना चाह रहे हैं झंडे की अहमियत क्या है, तिरंगे की अहमियत क्या है और इस साल वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्यों है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भदरवा ऑर्गेनाइज्ड ब्लड डोनेशन कैंप्स एट वेरियस प्लेसेस इन भदरवा। First camp was conducted at 4RR in Indian Army and second at CRPF hospital. More than 30 units of blood were collected, in which 15 from RR soldiers, 10 from CRPF and 5 units from the local people. Speaking on the occasion, BMO Bhadarwa Dr. Shakil thanked all the donors and said that this blood would be used for the needy people. सर, सबसे बड़ा दान रक्तदान। आज 28 जुलाई को यहाँ पे हम सारना में राष्ट्रीय राइफल 4th बटालियन के जवानों से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप करवा रहे हैं। हम इनके आभारी हैं। एज़ यूजुअल हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, इनका बहुत अच्छा बढ़िया योगदान रहता है। पिछले साल भी बहुत बढ़िया रहा था और इस साल भी हमें इनका काफ़ी कोऑपरेशन मिला है। हमने आज ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है एंड होपफुली 15 to 20 बेनिफिशरीज़ का हम आज को ब्लीड करेंगे। ये बहुत ही नीडी, पुअर और हेल्पलेस लोग जो जिनको आवश्यकता रहती है इमरजेंसीज के दौरान, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई दुर्घटना या किसी कारण भी ब्लड की आवश्यकता रहती है और उनके साथ में उनके अटेंडेंट्स नहीं होते हैं या पुअर पीपल जो भी नीडी होते हैं, हम इसको स्टोरेज में रखते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े हम उनको ब्लड दे देते हैं। That's all in today's English bulletin. Thanks for watching GKC News and stay tuned for more updates.